کا آغاز کریں۔ خداوند کے زندہ کلام میں سے ہم پڑھیں گے، خدا کی جماعت میں خدا موجود ہے، وہ اہلوں کے درمیان عدالت کرتا ہے، الہوں کے درمیان عدالت کرتا ہے۔ تم کب تک بے انصافی سے عدالت کرو گے اور شریروں کی طرفداری کرو گے؟ غریب اور یتیم کا انصاف کرو، غمزدہ اور مفلس کے ساتھ انصاف سے پیش آؤ، غریب اور محتاج کو بچاؤ، شریروں کے ہاتھ سے ان کو چھڑاؤ۔ وہ نہ تو کچھ جانتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، وہ اندھیرے میں ادھر ادھر چلتے ہیں۔ زمین کی سب بنیادیں ہل گئی ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ تم اعلیٰ ہو اور تم سب حق تعالیٰ کے فرزند ہو، تو بھی تم آدمیوں کی طرح مرو گے اور امرا میں سے کسی کی طرح گر جاؤ گے۔ اے خدا، اٹھ زمین کی عدالت کر، کیونکہ تو ہی سب قوموں کا مالک ہوگا۔ آمین۔ زمین و آسمان کے خالق و مالک، اے باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس موقع، اس گھڑی کے لیے کہ باپ آپ نے ہمیں یہ فضل عطا کیا کہ ہم آپ کے قدموں میں حاضر ہوں اور آپ کے نام کو جلال دیں، آپ کے نام کو مبارک و دھنباد کہیں، کیونکہ باپ آپ شاہ عظیم خدا ہیں۔ آپ کا کوئی ثانی نہیں، آپ کے مقابل کچھ ہے نہیں۔ آپ جلالی باپ ہیں، آپ ابدیت کے باپ ہیں، آپ جلالی پتا ہیں، آپ ابد سے تھے ہیں اور رہیں گے، اور آپ کا نام مبارک ہے۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ باپ تیری طرفداری عظیم ہے خداوند، اور تیری وفاداری عظیم ہے خداوند۔ اے باپ، ہم تیرے شکر گزار ہیں اس بات کے لیے دل کی گہرائیوں سے کہ خداوند تو نے ہمیں یہ فضل عطا کیا ہے۔ گزرا ہفتہ میں ہماری حفاظت نے نگہبانی کی ہے اور اپنے پروں کے سائے کے نیچے رکھا ہے، اور ہمیں یہ آج کا دن بخشا ہے کہ ہم ایک بار پھر اکٹھے ہو کے کلیسیائی طور پہ خداوند کو یاد کر سکیں، تجھے دھنباد کہہ سکیں، تیری تعریف کر سکیں، تیری تمجید کر سکیں۔ خداوند اس بات کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ باپ، جتنی جانیں جتنی عزیز تیرے حضور حاضر ہوئے ہیں خداوند، ان کے لیے ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں خداوند دل کی گہرائیوں سے خداوند کہ تو نے ہمیں یہ فضل عطا کیا ہے۔ باپ، جتنی جانے اور جتنے عزیز آنے کا ارادہ رکھتے ہیں باپ، تو نے جلد لے کر آ تاکہ وہ تیری حمد و ثنا میں شامل ہو سکیں اور آج کا زندہ کلام ہے خداوند سن سکیں اور اپنی زندگیوں میں اسے قائم کر سکیں خداوند۔ اے باپ، ہم شکر گزار ہیں خداوند دل کی گہرائیوں سے تمام تر نعمتوں کے لیے، تمام تر برکتوں کے لیے جو تو نے ہمیں عطا کی ہیں اور ہمہ وقت تیار رہتا ہے دینے کے لیے خداوند۔ ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں باپ۔ اے باپ، ہم وقت ہے کہ خداوند ہم تیری تعریف کرنے کو ہیں، تیری تمجید کرنے کو ہیں خداوند۔ اے خداوند، گیتوں کے چناؤ کو اے خداوند تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں، اپنے ہونٹوں کو ذمہ لے، ہمارے ہونٹوں کا ذمہ لے خداوند۔ گیت گانے میں ہماری رہنمائی کر، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کو روشن کر خداوند، تاکہ ہم روح اور سچائی کے ساتھ خداوند تیری حمد و ثنا کر سکیں خداوند۔ ہر ایک کے ساتھ ہو، ہر ایک کو چھو، اپنا مسا عطا کرے خداوند، تاکہ اے خداوند تیری پرستش کو کرتے ہوئے خداوند، تیری حضوری کو اے خداوند محسوس کرتے ہوئے خداوند ہم یہ جانیں کہ خداوند تو اپنے لوگوں میں، اپنی جماعت میں تو موجود ہے خداوند۔ اے خداوند، ہم تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں ہر ایک بات کو، ہر ایک چیز کو خداوند تیرے ہاتھوں میں سونپتے ہیں خداوند۔ ہمیں پاک کر، ہمیں پاکیزگی عطا کر، ہمیں پاک دامنی عطا کر، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے دلوں کو تو صاف کر، ہمیں پاکیزگی عطا کر۔ اگر کوئی غلطی خطا گناہ ہم سے سرزد ہو گیا ہے جانے انجانے میں، تو خداوند تو ہمیں معاف کر، اپنے پاک خون سے دھو دے اور صاف کر دے، ہمیں اپنے پاک خون میں چھپا لے، کیونکہ باپ ہم تیرے بچے ہیں، تیرے نام کے کہلاتے ہیں، تیرے نام سے جانے جاتے ہیں، تیرے نام سے پہچانے جاتے ہیں خداوند۔ تو اے خداوند رحمت ابدی باپ ہے۔ اے خداوند تو اے خداوند تیرا کوئی ثانی نہیں ہو، تیرے مقابل کوئی ٹھہر نہیں سکتا خداوند۔ تو قہر کو دھیما کرنے والا، تیرا قہر دم بھر کا لیکن تیرا کرم عمر بھر کا ہے باپ۔ اے باپ، تو ہمیں اپنے کرم سے نواز اور ہمیں اپنی پناہ میں رکھ اے خداوند۔ اے خداوند ہر ایک کے ساتھ ہو، ہماری رہنمائی کر۔ دعا کو سن اور قبول کا مانگتے ہیں تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ ہم زبور گائیں گے، زبور 23 ہے، رب عالی میرے کول میرے دلوں میں۔
شکر گزاری کے لیے آزادی ہے، جسے خداوند کا روح وارے وہ شکر گزاری کی دعا میں رہنمائی کرے۔ قدوس 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 آسمانی باپ رب الافواج بہربر کے خالق و مالک الوہیم خداوند مسیح یسوع میں ہمارے جلالی پتا خداوند تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند اس وقت کے لیے، خداوند اس گھڑی کے لیے آسمانی باپ جو تو نے ہم سب کو بخشا کہ ہم مل بیٹھ کر تیری عبادت کریں، تیری پرستش کریں، تجھے دھن باد کہیں، مبارک کہیں خداوند اس میل ملاپ کے لیے خداوند تیرا شکر ادا کرتی ہیں آسمانی باپ ہے خداوند خدا۔ اس سردی کے موسم میں ہے خداوند خدا تو نے ہم سب کو بخشا کہ ہم تیرے حضور میں ہیں خداوند خدا۔ جتنی جانیں آسمانی باپ یہاں پہ موجود ہیں آسمانی باپ، ایک ایک کو بڑی برکت دے، ایک ایک کو آسمانی باپ اپنے بیٹے کے لہو سے چھپا لے خداوند۔ آسمانی باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں خداوند گزرا وقت کے لیے خداوند، پورے ہفتے میں آسمانی باپ تو نے ہمارا ساتھ دیا، مدد کی، رہنمائی کیا خداوند، ہمارے ہر خداوند خدا اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں خداوند، ہر ایک کام میں آسمانی باپ تو نے ہمارا ساتھ دیا، ہماری بڑی مدد کی، رہنمائی کیا خداوند، اس کے لیے میں تیرا شکر ادا کرتی ہوں۔ اور آسمانی باپ ہے خداوند خدا، ہمارا گیت گانا ہے آسمانی باپ ہے خداوند خدا، ساز بجانا ہے آسمانی باپ تیرے حضور مقبول ٹھہرے آسمانی باپ ہے خداوند خدا۔ ہم تیری اے خداوند خدا تیرے حضور پرستش روح اور سچائی کے ساتھ کرنے والے بنے، کیونکہ اے خداوند تو ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی کے ساتھ تیری عبادت کرے اے خداوند خدا۔ قدوس آسمانی باپ ایک ایک جان کو چھو، ایک ایک بدن کو چھو اے خداوند، اور اے آسمانی باپ اے خداوند خدا ہماری زندگیوں سے تیرا نام اے خداوند خدا جلال پاتا رہے، اور اے خداوند خدا ہماری زندگیوں میں اور زیادہ کام کر اور اپنے جلال کے لیے اور زیادہ استعمال کر۔ ہمارے اے خداوند ہماری زبان کا ذمہ لے، ہمارے ہونٹوں کا ذمہ لے، ہمارے ذہنوں کا اور دلوں کا ذمہ لے اے خداوند خدا، تاکہ اے خداوند ہمارا دھیان اور فوکس ہے آسمانی باپ صرف تجھی پر ہو اے خداوند خدا۔ ہم آسمانی باپ تیرے حضور میں اے خداوند خدا دعا آسمانی باپ اس طرح سے کرے جیسے تجھے پسند آئے اے خداوند خدا۔ ہماری اے خداوند خدا اس شکر گزاری کو سن اور قبول کر، یہ سب کچھ مانگ لیتی ہوں تیرے پیارے بیٹے مسیح یسوع ناصری کے نام سے۔ ہم زبور گائیں گے، زبور 103، تو آنکھ ہے میری جان مبارک۔
शुक्र गुजारी के लिए दरख्वास्त है नीता से कि वो शुक्र गुजार की दुआ में रहनुमाई करें। अजीम में शीर खुदाई करते हैं अब्दियत के बाद शांति के शैतान तू जो था तू जो है तू जो आने वाला है बाप खुदा हम तेरा शुक्र तेरे नाम की तमजीद तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं खुदा कि तू ही शाह अजीम है खुदा तू मसीह पर हमारी ढाल हमारा ऊंचा बुर्ज है खुदा तू ही हमारा मोहकम किला है खुदा जी बाप मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदा कि तेरा नाम जो मुबारक है और खुदा ऐसे वसीले और ऐसे मौके तू फराहम करता है कि हम तेरे नाम को खुदा मुबारक कह सके तेरे नाम को धन्यवाद कह सके खुदा हम तेरे नाम की जय जयकार कर सके क्योंकि ये सब कुछ तेरे नाम ही गुज़ेबा है खुदा ना आसमान पे ना ही ज़मीन पे कोई ऐसा नाम बख्शा गया है खुदा जो जिसको ये सब कुछ वाजिब हो खुदा अजीम खुदा ने तेरा शुक्र तेरे नाम की तमजीद तेरे नाम की बढ़ाई करती हूँ खुदा कि तू मेहरबान अजीम है खुदावन तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त हमारे साथ रहती है खुदावन हम शुक्रगुजार हूँ कि तू हम जैसे नकम्मे नकारों पे अपना फजल वाला हाथ रखता है अपना प्यार अपनी मोहब्बत हम पे निशावर करता है खुदावन जो हमें हमेशा अपनी पनाह में रखता है खुदावन को कभी भी हमसे दस्तकार नहीं होता मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन पिछले हफ्ता आपने संभाला और ये वक्त हमें बख्श दिया खुदावन कि हम तेरे हज़ूर आएँ खुदा हम तेरे नाम की प्रस्तिश कर सके तेरे नाम को जलाल दे सके खुदा हम तौफीक दे के दिल और सच्चाई से खुदा हम जुलूस और सच्चाई से तेरे नाम की सताइश कर सके ताकि खुदा हम तेरे सच्चे परस्तारों में शामिल हो सके खुदा हम तुझे पसंद आ सके खुदा हम हमारा गाना बजाना तेरे हजूर मकबूल ठहरे खुदा हम की इबादत के शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ होइएगा अपने बंदा के साथ होना जो मीटिंग लीड कर रहा है खुदा हम जिसके पास आज का तेरा जिंदा कलाम है अभी से खुदा मुझे तो अपने पाक का मसा बख्श दे खुदा जितनी जाने तेरे हजूर बैठी हैं इनको नाम बना छू और बरकत दे खुदा ताकि वो तेरे नाम में और ज़्यादा मामूरी पाते चले जाए और खुदा कसरत से तेरे नाम को जलाल देने वाले बन सके खुदा मेरी इल्तिजा को मुनाजात को सुन और कबूल कर मांगती मसीह यीशु के नाम से खुदाम की तारीफ में बढ़ते गाएंगे ज़बूर 24 रब खुदाम बादशाह है वो जलालदा बादशाह है सब बच्चे साथ में गाएंगे पुरानी तर्ज में गाएंगे
کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے زندہ کلام کے لیے تیار کریں. آج کا کلام خدا سے مانگیں جو خدا نے اپنے بندہ کے وسیلہ سے ہمارے لیے رکھا ہے، تاکہ اسے ہم اپنی زندگیوں میں عمل میں لانے والے بنیں. تو میں درخواست کروں گا پھپھو جی سے کہ وہ کلام کے لیے، خدا کے خادم کے لیے وہ دعا میں رہنمائی کریں. قدوس 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 رب الفال برابر کے خالق و مالک، مسیح یسوع میں ہمارے جلالی پتا خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں ہر نعمت اور بخشش کے لیے اور اس پیار محبت کے لیے جو خدا نے آپ نے بخشا کہ آپ کے قدموں میں ہیں تو جتنی والدین بات کے ہیں کیونکہ اسے تو بزرگی خدا آپ کی کوئی جگہ ہے، کوئی ایسا نام نہیں جس کی وسیلہ میں نجات ملتی ہے. خدا تمہارا نجات دہندہ رحمت سے بھرا ہوا خدا ہے، خدا کوئی پیارے لبریز ہیں خدا دینے کے لیے تو ہمیں وقت پر ہر چیز مہیا کرتا ہے. خدا تیرا دل سے تیرا شکر ادا کرتے ہیں. خدا تیرا منت سے درخواست کرتی ہے خدا اس وقت کے لیے جو خدا ہمیں بخشا. خدا باب ایک ہی بڑی سہایتا کرے کہ سمجھ حکمت دنائی سے روشن اور خیالوں کو جان اپنی پہچان اور اپنے نور میں آگے بڑھنے کا بڑا فضل عطا کر. خدا رحمت دس کا خدا باپ جو ہم آج کل ہم سیکھنے ہوتے ہیں خدا باپ کلام کے وسیلے سے بڑی برکت دینا. خدا سمجھ دنائی سے روشن رکھنا، ہمارے خیالوں کو جاننا اور اپنی پہچان اپنے نور میں آگے بڑھنے کا بڑا فضل عطا کرنا. خدا باپ یہ کلام ہمارے دلوں میں لکھا جائے تاکہ خدا باپ کے شیطان کے ابلیس کے برے ارادے منصوبوں سے ہمیں بچانا، محفوظ رکھنا اور یہ ہمارے دلوں میں محفوظ رہے. خدا باپ شیطان کے غلط تیروں سے بچانا، محفوظ رکھنا. خدا باپ رحمت دس کھانا خدا باپ پیارے مہربان خدا بھائی کے لیے خاص کر محنت کرتی خدا جو کلام ہمیں دینے کو ہیں خدا باپ وہ نہ بولے بلکہ خدا کے روح کا مسا خدا کے ان کی زبان پر ہو، خدا سارے بدن پر ہو تاکہ خدا باپ روح سچائی سے خدا ہمیں بتانے کا بڑا فضل عطا کر. خدا باپ اپنا جلال ظاہر کر اور شیطانی کفتوں سے بچا کے محفوظ رکھ پاک رکھ. ہونٹوں کا زبان کا ذمہ لے خدا باپ ساتھ سے لے کر پاؤں تک بڑی حفاظت کر. خدا باپ پیارے مہربان خدا ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھ، ہمارے خیالوں کو جان، ہمارے دلوں کو خدا جانچ اور پہچان. خدا باپ گزرشوں سے بے تاثیروں سے بچا کے محفوظ پاک رکھ اور خدا نے ایک کی بڑی سہایتا کر. خدا باپ جو پرستش عبادت کی اپنی حضوری میں محبوب سے پہلے خدا باپ قبول کر. خدا باپ دس کا خدا باپ سازوں کا تیرا ہاتھ ہوا خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں. باقی مانوں تو بڑی رہنمائی کا دعاؤں میں گیتوں میں تم رہنمائی کی تیرا شکر ادا کرتے ہیں. شروع سے لے کر آپ تک بڑی رہنمائی کا دعا اور منت کو خدا سنے اور قبول کرے. مانگتی ہوں آپ کی پیاری بیٹی مسیح کے نام سے. خدا کے خادم عزت اور تعریف کے لائق ہیں. ہم منکل جی کا تعلیم سے استقبال کریں گے. آئے ہم کتاب مقدس کو کھولیں. پہلا کرنتیوں اور اس کا چھٹا باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر کے 17ویں آیت تک پڑھیں گے. ایک آیت میں پڑھوں گا، دوسری آیت جن کے پاس بائبلیں ہیں وہ پڑھیں گے. باقی غور سے سنیں. پہلا کرنتیوں چھٹا باب اور اس کی 12ویں آیت سے لے کر کے 17ویں آیت تک. سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں مگر میں سب چیزیں مفید نہیں. سب چیزیں میرے لیے روا تو ہیں لیکن میں کسی چیز کا پابند نہ ہوں گا. کھانے پیٹ کے لیے ہیں اور پیٹ کھانوں کے لیے، لیکن خدا اس کو اور ان کو نیز کرے گا. مگر بدن حرام کاری کے لیے نہیں بلکہ خداوند کے لیے ہیں اور خداوند بدن کے لیے. اور خدا نے خداوند کو بھی جلایا اور ہم کو بھی اپنی قدرت سے جلائے گا. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارے بدن مسیح کے اعضاء ہیں؟ پس کیا میں مسیح کے اعضاء لے کر کسی کے اعضاء کو بناؤں؟ ہرگز نہیں. کیا تم نہیں جانتے کہ کوئی کسبی سے صحبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوتا ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے کہ وہ دونوں ایک تن ہوں گے. اور جو خداوند کی صحبت میں رہتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک روح ہوتا ہے. خدا کے کلام پر اس کی برکت ہو. آمین.
आज की जो मरकजी आयत है वो आयत 17 है, और मैं चाहूँगा सब मेरे पीछे बोले। और जो खुदावंद की सोहबत में रहता है और जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। वो उसके साथ एक रूह होता है। खुदा के कलाम पर उसकी बरकत हो, आमीन। इस हवाले के अंदर पौलुस रसूल इंसान के जिस्म के बारे में बात करता है और फिर रूह के बारे में बात करता है। और खुदा ने भी इंसान के बारे में यही कहा कि भाई आदमी अपने बाप बाप को छोड़ करके अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे, एक जिस्म। और जिन्हें खुदा ने जोड़ा है उन्हें आदमी जुदा ना। और यहाँ पर रूह के बारे में बात की जाएगी कि जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। इससे पता चलता है जिस खुदा को बीवी मानती है उसी खुदा को शोहर मानता है। शोहर की रूह का तल्लक खुदा की रूह के साथ, जिस्म का तल्लक अपनी बीवी के साथ। दोनों चीजों को अलग बयान किया गया है। यीशु मसीह ने कहा ये दोनों जिस्म हैं, और जिन्हें खुदा ने जोड़ा है उन्हें आदमी जुदा ना करे। इससे पता चलता है कि जुदा करने वाले भी हैं, जुदा होने वाले भी हैं। एक जुदा करता है शैतान, खुदा से जुदा करता है। एक खुद इंसान जुदा हो जाता है खुदा से, साथ नहीं रहना चाहता। और जब मियां बीवी के अंदर भी लड़ाई झगड़े जब अरूज पर पहुंचते हैं तो वो भी दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहता, पसंद करते। ये लड़ाई शुरू से आसमान पर हुई और वो लड़ाई आज तक खत्म नहीं हुई। शैतान मियां बीवी के दरमियान लड़ाई कराता है, बच्चों के दरमियान लड़ाई करवाता है, भाइयों के दरमियान लड़ाई करवाता है, बहनों के दरमियान लड़ाई करवाता है। लड़ाई उसका पेशा, जुदा करना। लेकिन खुदा जो है वो जिस्म की परवाह नहीं करता। वह कहता जिस्म से कुछ फायदा नहीं, रूह की तरफ ध्यान लगाता है। और यहाँ पर खुदा का बंदा भी जो है वो ये कहता है, और जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। तो खुदा चाहता है कि हमारी रूह जो है वो खुदावंद की रूह के साथ एक हो। शैतान की ख्वाहिश है कि हमारी रूह खुदा की रूह से जुदा है। इंसान अपने ख्याल से भी जुदा होता है, अलग होता है, अलग हो जाता है, साथ नहीं रहना चाहता। और जो साथ नहीं रहना चाहते वो नुकसान में जाते हैं, जो साथ रहना चाहते हैं वो फायदे में। ये फर्क है इसके अंदर। मिसाल के तौर पर शैतान सबसे पहले उसने कहा मैं खुदा के साथ नहीं रहूंगा, मैं अपना तख्त उसके तख्त से भी मैं उसकी मानंद होऊंगा, मैं आसमानों पर भी चढ़ जाऊंगा। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि मैं तो मखलूक, वो खालक है। लेकिन अपनी मर्जी से खुदा से अलग होने की, जुदा होने की, साथ ना रहने की थाट उसके अंदर आ जाता है। और फिर तकरीबन आसमान के 3/3 फरिश्ते अपने साथ लगा लेते हैं। पता नहीं क्या लालच दिया होगा उसको, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि फरिश्ते भी मखलूक हैं, शैतान भी मखलूक है, खालिक के पास सब कुछ है, लेकिन सरकशी, बगावत, साथ नहीं रहना चाह रहा, जुदा होने की कोशिश कर रहा है।
अपनी आइडेंटिटी जो है वो बनाना चाहता है, और उसका फिर क्या नतीजा निकलता है कि वो फिर लड़ाई होती है और जमीन पर फेंक दिया जाता है, और बेशुमार जो उसके जो इख्तियारात थे, जो ओहदे थे, वो उससे छीने जाते। ये है जुदा होने की सजा, अलग होने की सजा, साथ ना रहने की सजा। और इस सजा को देखते हुए हमारे लिए एक सबक है कि हम किसी भी सूरत में, मुसीबत में, परेशानी में, लड़ाई झगड़े में खुदा से अलग होने की कोशिश ना करें। अपने साथी से भी लगना है, लेकिन खुदा से लगना हो तो शैतान ने पहला काम किया, बगावत उस वक्त से शुरू हो गई। साथ ना रहने की जो ख्वाहिश है इंसान के अंदर, वो शैतान ने डाली, और बेशुमार लोग जो हैं वो खुदा के साथ नहीं हैं। दुनिया के अंदर बेशुमार लोग हैं वो खुदा के साथ नहीं हैं, और जब अपनी मर्जी से खुदा से जुदा होते हैं तो उसका नताइज हमेशा गलत होते हैं। मिसाल के तौर पर यूना नबी है, खुदा के साथ रहता है। कलाम कहता है कि खुदा की रूह नबियों के अंदर, खुदावन जो है वो नबियों की रूहों का खुदा है। और जब उसे कहता है कि खुदा की मर्जी ये है कि तू जाए और नैनवा में जाकर के क्या करे, तौबा की मनाती करे, और वो खुदा की मर्जी को के खिलाफ जाता, उसकी मर्जी के साथ नहीं चलता, खुदा से अलग होता है और तरसीस को चला जाता है। और फिर हम पढ़ते हैं कि उसके नताइज क्या निकलते हैं, यानी नताइज बुरे निकलते हैं। जब तक वो तौबा नहीं करता मछली के पेट में, खुदा उसे बहाल नहीं करता। तो तौबा जो है ये लाजमी अमर है कि अगर हमसे गलती हुई है तो हमें तौबा करके फिर उसके साथ रहना शुरू जो है वो कर देना। कुछ लोग साथ रह रहे होते हैं, साथ नहीं होते, साथ रह रहे होते हैं, साथ नहीं होते। मिसाल के तौर पर यूथ अक्सर युवती जो है वो साथ रह रहा है, और साथ नहीं है, सब कुछ देखता है जी, है अलग। और उसका जो अलग होना है, जुदा होना है, साथ रहते हुए लोग बाद दफा अलग होते हैं। और उसका अंजाम क्या होता है तो वो फिर जब उसे अपने ही गलती का एहसास होता है तो एहसास जुर्म इस हद तक बढ़ जाता है कि वो अपने आप को ही फांसी लगा लेता है। इसलिए कभी जिंदगी के अंदर जो खुदा ने रिश्ते दिए हैं उनसे अलग नहीं, खुदा से भी अलग नहीं होना। इसलिए यहाँ पर वो क्या कहता है, जो खुदावन की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह। तो खुदावन यीशु मसीह मुझे और आपको, आपकी रूह को, मेरी रूह को एक रूह करना चाहता है। एक हवाला देखते हैं, यूहन्ना की इंजील 17 बाब और उसकी 22 आयत। 17 बाब जो नकाले ऊंची आवाज, मैं उनमें नहीं और वो जलाल जो और- तूने मुझे दिया है, मैंने उन्हें दे दिया है, ताकि वे एक हों जैसे हम एक हैं। बस। और 23 आयत में पढ़े, मैं उनमें और तू मुझ में, ताकि वो कामिल होकर एक हो जाए, एक हो जाए और दुनिया जाने जाने के तूने ने मुझे भेजा भेजा है। है। इससे पता चलता है अब ये ख्वाहिश है यीशु मसीह कि वो अपनी रूह को हमारी रूह के साथ मिला करके एक रूह बनाना चाहता है। अगर जिसमें बारे का वो दो जिस्म नहीं, एक जिस्म है।
अब यहाँ पर जो खुदावंद है वो अपनी रूह को और ईमानदारों की रूह को मिला करके वो एक रूह बनाना चाहता है। इस तरह यूहन्ना बसवा देने वाला कहता है, खुदावंद के दिन मैं रूह में आ गया, यानी खुदा में आ गया। इसी तरह ये हमें बताता और सिखाता है, समझाता है। 22 आयत के अंदर वो कहता है, और वो जलाल जो तूने मुझे दिया है मैंने इन्हें दिया है ताकि वो एक हो जैसे हम एक हैं, यानी मैं और बाप एक। और याद रखना कि जब भी खुदावंद बात करते थे यानी यीशु मसीह, तो वो कभी अपने आप को अकेला जाहिर नहीं करता। बाप मेरे साथ है, बाप मुझ में रह करके अपने काम करता है। तो वो कहता है कि जैसे बाप की रूह बेटे की रूह एक है, वैसे ही ईमानदार की रूह जो है वो, और ईमानदार की रूह के अंदर यीशु मसीह रहना चाहता है। अगर हम 23 आयत पर गौर करें, घर में जाकर भी इसको बार बार पढ़ना। 23 आयत में लिखा है, मैं उनमें यानी शागिर्दों में और तू मुझ में। देखें वो क्या कह रहा है, मैं शागिर्दों में और तू। अब वो फ्रंट चाहता है, ईमानदार का फ्रंट चाहता है। ईमानदार पीछे, जिस तरह जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास वो कहता है कि जिसकी दुल्हन है वो दूल्हा है, और आखिर में कहता है जरूर है कि वो मैं घटूं और वो यानी फ्रंट में है। अब वो आगे आए, और यहाँ पर भी यीशु मसीह जो चाहता है वो फ्रंट में आना चाहता है। इसलिए पड़ोस कहता है जिसमें मसीह का रूह नहीं वो उसका नहीं है। तो इस तरह से वो अलग करता है ताकि हम मसीह के उसकी रूह के साथ हमारी रूह जो है वो एक हो जाए, यानी हमें वो एक करना चाहता है। और जब यीशु मसीह दुनिया के अंदर फिरता था तो बाप की रूह उसके अंदर थी। वो बोलता था, बाप मेरे साथ है, बाप मेरी हमेशा सुनता है, और बाप मुझ में रह करके अपने काम करता है। तो इसे पता चलता है कि बाप और बेटे के रूह इकट्ठी एक है। और यही वो चाहता है कि मेरी रूह और खुदावंद यीशु मसीह की रूह जो है वो एक हो जाए। इसलिए पौलुस कहता है, और जो खुदावंद की सोहबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। ये मिशन है खुदावंद यीशु मसीह का। अब शैतान का क्या मिशन है? जुदाई कराना। ये एक ना हो बल्कि एक दूसरे से जुदा रहे। एक हवाला देखते हैं, इफिसियों 2 बाब और उसकी 14वीं आयत। इफिसियों 2 बाब उसकी 14वीं आयत। क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। और यहाँ पर भी खुदा का बंदा पौलुस यही कहता है, क्योंकि वो ही हमारी क्या है? सुलह है, जिसने दोनों को क्या कर लिया? एक कर लिया। यानी ईमानदार को और खुदा को यानी यीशु को एक कर लिया है, दोनों को एक कर लिया। और बीच में जो जुदाई की दीवार थी, जो शैतान ने जुदाई कर दी थी, उसको ढा दिया। अब दीवार जो है वो ढाई गई है। मैं रजा कराना तौर पर खुदा के पास आकर के उसकी रूह के साथ एक हो सकता हूं। मैं अपनी ख्वाहिश को डेवलप करके कि मैं हमेशा हर वक्त खुदावंद की सोहबत में रहना चाहता हूं। ये छोटे बच्चे हैं, जितने छोटे होते हैं ये किसकी सोहबत में रहना पसंद करते हैं? माँ। ठीक है। और माँ भी जो जितना छोटा था उसको पकड़ के गोद में कर लेती है। दोनों एक हुए होते हैं। वो भी चमड़ कर रहा, नेचर है ना, चमड़ कर, और वो भी उसे अपनी गोद।
लेती है, इसी तरह खुदावंद की रूह जो है वो हमारी रूह के साथ एक होकर के रहना चाहती है। ये उसकी ख्वाहिश है। हम उसकी ख्वाहिश को कितना पूरा करते हैं? रजा कराना तौर पर, अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से, अपनी राय से, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि उससे जुदा जो हो, जुदाई है वो किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर हम उसके साथ एक होते हैं, जिस तरह मतलब कि उसने मिसाल दी कि जिस तरह डाली जो है वो दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती, तो यीशु मसीह ने कहा तुम मुझसे जुदा होकर के कुछ नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर यीशु मसीह सिखा रहे हैं, मुझसे जुदा होकर के तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर जुदाई के तरफ आएंगे आपको कुछ फायदा नहीं होगा, बल्कि नुकसान होगा। और जुदाई कहता है जो मुझ में कायम नहीं रहता वो सूख जाता, वो कांटा डाल दिया जाता, लोग उसे कहाँ झोंक देते हैं, ये उसका अंजाम है। तो जुदाई जो है, खुदा से जुदाई, उसका अंजाम जो है वो नहायत खतरनाक। वो बचाना चाहता है, अपने साथ रखना चाहता है, एक बना करके, ताकि जब भी किसी की उंगली उठे मेरे ऊपर तो वो उंगली मेरे ऊपर ना उठे बल्कि वो यीशु मसीह के ऊपर उठे। और जब वो यीशु मसीह के ऊपर उठेगी तो हर चीज की डिफेंस वो खुद ही कर रहे। वो क्या कहता है, चोर और डाकू को मैंने पैदा किया है, लूटमार करे, लेकिन जो हथियार तेरे खिलाफ बनाया जाएगा काम में नहीं आएगा। क्यों? मेरी रूह, इसलिए उसकी डिफेंस है। इसलिए हमें कभी भी अपनी लाइफ के अंदर उससे जुदा होने की कोशिश जो है वो नहीं करनी चाहिए। एक हवाला देखते हैं, मत्ती की अंजील 25 बाब और उसकी 31 आयत। मत्ती की अंजील। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा। अब वो एक को दूसरे क्या कर देगा? जुदा करेगा। जुदा कर। एक टाइम पर जमीन पर आपकी अपनी ख्वाहिश है कि आप उससे जुदा रहना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं, और अगर नहीं रहना चाहते, जुदा रहना चाहते हैं, तो आखिर में वो भी आपको जुदा कर देंगे। फिर पढ़ें ये हवाला जरा 31 आयत से। हाँ जी। जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है, और आगे, और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो बादशाही जो बनाए आलम से पेशर तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उससे मेरा नाराज। इसका मतलब कि दो धड़े हो गए, एक दाहिने तरफ चला गया, जेड़े दाहिने तरफ वाले हैं वो फायदे से चले गए, किधर चले गए, जेड़े बाएं वाले ने उन्होंने खुदा ने खुद जुदा कर छे। हुण तुसीं विच इकट्ठे ही रह, हुण मैं जानना किहड़ा ईमानदार है ते किहड़ा गैर ईमानदार है। इन्हें तौबा कीती है, रातबाजी पूरा कीता, जिन्हें नहीं कीता, किहड़ा मेरे नाल रहिंदा रहा, किहड़ा नहीं नाल रहिंदा रहा, वो आप जुदा कर। और जो जुदा किए गए हैं वो आग में जाएंगे, जहां रोना और दांत पीसेंगे। जब मुझे आदत पड़ जाए जमीन के ऊपर खुदा के साथ रहने की, खुदा को आदत पड़ जाए मेरे साथ रहने की, ना वो मुझे छोड़ेगा ना मैं उसे छोड़ूंगा। और यूं हमारा जो जिंदगी का सफर है रूहानी, उस वक्त तक नहीं छोड़ेगा जब तक वो हमें आसमान में ले नहीं जाएगा। सारी जिंदगी साथ साथ रहेगा।
जिंदगी साथ में रहने का मकसद है वो रूह उसका रहेगा हमारे साथ। उसके बारे में क्या क्या है? रूह कुद्दस जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती वो अब तक तुम्हारे साथ है, अब तक। इसका पता चलता है कि जब यीशु को आदत पड़ गई हमारी रूह के साथ एक हो रहेगी, हमारी रूह को आदत पड़ गई उसके साथ एक हो, तो जुदाई है, तो फायदा ही फायदा है। और फिर खुदा खुद जो है हमें ऊपर ले जाएगा। साथ रहने का, खुदा से अलग ना होने का बड़ा फायदा है, जुदा होने का नुकसान ही नुकसान। इसलिए हमें इस जिंदगी के अंदर अपनी लाइफ के ऊपर जरूर फोकस करना चाहिए कि मेरी रूह खुदावन के साथ कितना टाइम स्पेंड करती है। मेरी रूह खुदावन के साथ कितना टाइम स्पेंड करती है। जितना टाइम आप उसके साथ स्पेंड करते हैं, और जब आप उसके साथ स्पेंड करते हैं तो वो 3 चीजों को फोकस करता है कि मुझे टाइम दिया है तो 3 बातों पर ध्यान देना। और वो कौन सी हैं? एक उसकी हमद का गीत या ज़बूर गाना है, एक उसका कलाम पढ़ना है, एक उससे मांगना है, दुआ करना है। ये उसकी ख्वाहिश है। लिहाजा हमें जिंदगी के अंदर जो शैतान हमें जुदा रहने की, साथ ना रहने की तरह तरह की ख्वाहिशात डालता है, इसको रिजेक्ट करना है। जब आप इसको रिजेक्ट करेंगे तो आप सही मायनों में आपकी रूहानी तौर पर जो जिंदगी है वो फोकस करेंगे। आपका निशान किस तरफ कौन है? यीशु मसीह। और पौलुस क्या कहता है? मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं और किसी तरफ नहीं जाता, मेरी दौड़ उस तरफ। इससे हमें ये सबक मिलता है कि जिस दौड़ को हमने शुरू किया है तौबा करके, खुदा की रास्तबाजी को पूरा करके, इसको हमने मसीह तक लेकर के जाना। इसलिए पौलुस कहता है कि मैं निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं। मेरा फोकस ये है, मेरा इरादा और मंसूबा जो है वो ये है ताकि मैं उस की तरफ मेरा ध्यान जो है वो लगा रहे। एक और हवाला देखते हैं, यूहन्ना की इंजील 6 बाब और उसकी 17 आयत। और कशी में 66 आयत से पढ़ें। सॉरी 66 आयत से 70 से नहीं बल्कि 66 से 6 बाब की 66 आयत से। इस पर उसके शागिर्दों में से बतेरे उल्टे फिर गए और इसके बाद उसके साथ ना रहे। बस जी, अब यहाँ थोड़ा सा रुकेंगे फिर आगे चलते हैं। ये मसीह की दूसरी अपॉइंटमेंट थी जिसके अंदर उसने 70 शागिर्दों को चुना था। कितने शागिर्दों को चुना था? 70। अब जब उसने अपने गोश्त और खून के बारे में कलाम किया तो वो कहने लगे ये कलाम तो नागवार, कौन सुन सकता है। और उन्हें ये बिल्कुल पता नहीं चला कि खुदावंद तमसीलों में बात हो। डायरेक्ट किसी ने उसका गोश्त खाया, उसका खून पिया, किसी ने नहीं पिया। तो वो रूहानी मायनों से ना वाकिफ होकर के कि ये कलाम नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। और साफ लिखा है और इसके बाद उसके साथ ना उससे जुदा। अब यीशु मसीह क्या कहते हैं? बस यीशु ने उन 12 से कहा, क्या ये आगे क्या लिखा हुआ? चला जाना चाहते हो? उन 12 से कहा कि क्या तुम भी चला जाना चाहते हो? शमौन पतरस ने उसे जवाब दिया, ऐ खुदावन, हम किसके पास जाएं? हमेशा की जिंदगी की बातें तो तेरे ही पास हैं, और हम ईमान लाए और जान गए कि खुदा का कदूस तो तू ही है। वाह, बड़ा अच्छा जवाब दिया।
अब यीशु मसीह क्या कहते हैं 70 आयत में? यसू ने उन्हें जवाब दिया कि क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुन लिया? बस देखते यहाँ पर वो क्या कहता है, क्या मैंने तुम 12 को ही होता अक्सर क्योंकि ना रह रहे लग रही चुनाव के अंदर कह देता है आगे चल के उसके बारे में, बड़े जरा आगे क्या कहता है, और तुम में से एक शख्स शैतान, शैतान है। लेकिन चुनाव में नहीं है जी। उसके अंदर शैतान क्या है? चोरी का शैतान है, लालच का शैतान है, एक शख्स शैतान है तुम में से। लेकिन चुनाव में 12 के 12 क्यों? वो साथ है, साथ है। इससे पता चलता है कि वो साथ नहीं रहे, 70 साथ नहीं रहे और 12 साथ। और 12 के बारे में यीशु से कहता, क्या तुम 12 को मैंने चुन नहीं लिया? और जब चुनाव के अंदर आ जाते हैं तो फिर उनके साथ एक बड़ा वादा किया जाता है। वो निकाले लूका की इंजील 22 बाब और उसकी 28 आयत पढ़े। लूका की इंजील चुनाव के बाद वो क्या कहता है? लूका 22 बाब मगर तुम वो हो जो मेरी आजमाइशों में बराबर मेरे साथ रहे। हाँ देखो अब यो क्या कह रहा है, मेरे साथ रहे। ये 12 के 12 क्या है? साथ है। खामियों बीच में है, खामियां क्या है? बीच बीच में है, खताएं बीच में है, लेकिन साथ है। अब जब क्या बराबर मेरे साथ रहे। अब यहाँ पर यीशु मसीह करार करते हैं कि तुम मेरे साथ रहे। वो साथ छोड़ के 70 क्या कर गए हैं? साथ छोड़ के। दुनिया के अंदर भी बाज़ दफा फैमिलीज के अंदर जहाँ बहन भाई ज्यादा होते हैं वहाँ पार्टी बाजी मार जाती है। बाद में 2-3 करो जब नहीं 2 है जी। वो फिर उधर ज्यादा साथ अपनी मर्जी के बंदे नाल साथ। और यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि बराबर मेरे साथ रहे, और जैसे मेरे बाप ने मेरे लिए एक बादशाह मुकर्रर की है, मैं भी तुम्हारे लिए मुकर्रर करता हूं, ताकि मेरी बादशाही में मेरी मेज पर खाओ पियो, बल्कि तुम तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों, देखो जो साथ है उसको भी बादशाही दी जा रही, उसको छोड़ा नहीं जा रहा, बादशाही साथ है। और जब वो साथ है तो यीशु मसीह कहते हैं कि तुम तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबीलों का, क्या तुम 12 को मैंने चुन नहीं लिया? इससे पता चलता है कि फिर साथ रहना, गलती के साथ, खता के साथ, लेकिन साथ रहना, ये है साथ रहने का फायदा। लिहाजा यीशु मसीह कहता है क्या तुम 12 को मैंने चुन नहीं लिया? तुम्हें से एक शख्स है शैतान, है जी, चोरी का शैतान है जी, लालच का शैतान है, लेकिन क्योंकि साथ है तो चुनाव में है, चुनाव में है तो तख्त भी है उसके लिए, उसकी मेज पर खाना पीना भी है। इससे पता चलता है साथ रहना है। एक दफा
हम छोटे थे तो चोरी चोरी फिल्में देखने जाते। एक फिल्म देखी हमने तो उसमें 3 दोस्त होते हैं और एक जो है ना वो ज़रा लड़कियों में इंटरेस्टेड होता है। तो एक गांव में एक लड़की मिल जाए, उसके साथ बातें करनी शुरू कर देता है और 2 आगे निकल जाते हैं, कहता है छोड़ छोड़ इसको, चल आगे आगे चल। वो आगे जा रहे ना अपने ध्यान ना अगे ही हो ना 2 में घेरे जाते, वो 2 में फड़े जाते, 2 में बंद ने रस्सियां दे नाल, है जी। ये पिछे रहता कहता वो भी निकल गया है उन्होंने, फिर पिछे जाता है दूरों बंदा बन लेना उतों, फिर गन कढ़ के ना पहला एक दी रस्सी नूं मारदा गोली, फिर दूजे दी रस्सी नूं गोली मारदा, तो दोनों वो बंदे ने इधरों आ गई गोली। तो फिर वो बोलता है दोस्त पीछे रह सकता हूँ, साथ नहीं छोड़ सकता। तो इससे पता चलता है कि जो साथ नहीं छोड़ते उनके लिए फायदा है, वो दूसरों के लिए भी फायदा है। और यहाँ पर यीशु मसीह जो है ये फायदा इनके लिए करता है, लेकिन जो 70 हैं वो बादशाही से महरूम, वो 12 तख्तों से महरूम, वो मेज पर आकर के खा नहीं सकते, ये उसकी मेज पर आकर के खा सकते, ये 12 तख्तों पर बैठ करके इंसाफ कर सकते। जमीन पर इनको साहिब तस्दीक बना दिया गया, आसमान पर आपने क्या किया। ये है खुदा के साथ रहना, उसकी सोहबत में रहना, उसके साथ एक रूह होना। इससे पता चलता है कि जो साथ रहे वो कामयाब रहे, वो गालिब रहे, वो खुदा का दिया हुआ मकसद अपनी जिंदगी के अंदर हासिल करके, और जो साथ ना रहे तो फिर अपने वक़्त पर तो हर बंदे ने मर के जाना, ऊपर सामना तो खुदा का करना ही है। मैंने अकेले खुदा के सामने जाना, कोई सिफारिशी नहीं, एक खुदा एक मैं बस। लेकिन अगर मेरा साथ जमीन पर होगा तो मेरे लिए आवाज़ क्या है, आओ मेरे बाप के ऊपर, मेरे लिए आवाज़ ये। लेकिन अगर मैंने जुदाई रखी है, साथ नहीं रहा हूं, तो फिर उनके लिए क्या है, मलाऊं मेरी आंखों के सामने से दूर उस बात की चीज, ये जुदाई। एक वक्त है आपके पास इख्तियार, अपनी मर्जी से जुदा रहना चाहते जुदा रहें, अलग रहना चाहते अलग रहें, साथ नहीं रहना चाहते ना रहें। लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाएगा जहां पर फिर खुदा आपको जुदा कर देगा, अलग कर देगा। और अगर खुदा ने आपको जुदा कर दिया, अलग कर दिया, तो फिर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं, ओनली वन ऑप्शन है, मलाउनो मेरे सामने से दूर उस आग की झील चले जाओ जो शैतान के लिए और उसके फरिश्तों के लिए तैयार की गई है। इसलिए हमें ज़िंदगी के अंदर जब हमने तौबा की है, रास्तबाजी को पूरा किया है, तो फिर हमें चाहिए कि हम अपने रूहानी किरदार तैयार करके कलाम के साथ, दुआ के साथ, हमदोस्ताइश के साथ, तो खुदावंद की सोहबत में, जब हम खुदावंद के साथ रहेंगे, खुदावंद की सोहबत में रहेंगे, तो हम असली मानों में यानी रूहानी मानों में उसकी रूह के साथ एक हो जाएंगे। तो जब हम उसके साथ, उसकी रूह के साथ एक हो गए, तो जहाँ पर वो है वहीं पर हम, जिस तख्त पर वो बैठेगा, जिस मेज पर वो खाएगा, हम जैसे वो तख्त पर बैठेगा हम भी तख्त पर बैठेंगे। तो तख्त पर बैठ कर इंसाफ, कितनी अच्छी बात है। इसलिए खुदा का बंदा कहता है जो खुदाओं की सोहबत में उसके साथ एक रूह होता है, और जब एक रूह होता है तो उसके जो फायदे हैं अबदी, वो बहुत बड़े फायदे, छोटे फायदे नहीं हैं। और अगर नुकसानात हैं तो वो भी बहुत बड़े नुकसानात, वो भी छोटे नहीं हैं। इसलिए हमें अपनी जिंदगियों पर गौर करते रहना चाहिए और हमेशा
हमेशा खुदावंद की सोहबत में रहना चाहिए और खुदावंद की सोहबत को कभी रिजेक्ट नहीं करना। खुदा इस कलाम के वसीला से आपका आमीन। खुदावंद का शुक्र है जिंदगी बख्श कलाम के लिए। हम गीत गाएंगे, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, और इसके साथ अपने हदिया जा खुदावंद के हुजूर पेश करें। सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी खुदाई यीशु तेरे लिए है, सारा जलाल यीशु तेरे लिए है, सारी खुदाई यीशु तेरे लिए है। हालेलुया, हालेलुया,
सना के लिए, सारी इबादत के लिए और इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए हम शुक्र अदा करते हैं। आखिर में मैं दरख्वास्त करता हूँ अब्बू जी से कि वो दुआ में रहनुमाई करें इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए, इस हदिया जात के लिए जो खुदाउन के दियों में से दिया गया है। दुआ में रहनुमाई करें। कदूस बाप, लश्करों के शाज़ीम बाप आसमानी, हम आपका शुक्र अदा करते हैं कि आप जो बेशकीमत मोहब्बत है जो हमारे साथ है, हमें इसके लिए आपका शुक्र है। अब बात में शुरू से लेकर आखिर तक हमारे आपने हमारा साथ दिया है, सताइश में हमारी मदद की है, अपनी हजूरी को हमारे दरमियान बरकरार रखा है और अपना कलाम नाजिल फरमा कर अपने खुदा की वसीला से हमें नसीहत और लेसन दिया है, हमें सिखाया है, हमें समझाया, हमें याद दिलाया। तुम मुझसे जुदा कर कुछ नहीं कर सकते। ऐ बाप आसमानी, इस ज़िंदगी बख्श कलाम के लिए जो हमारी राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है, हमारा मुखालफ इब्लीस दुश्मन इसको छीन कर ना ले जाए, बल्कि ये कलाम हमारी ज़िंदगी में गहरे तौर से फल है 30-60 में, ताकि तेरे बेटों को हमारी ज़िंदगी से इज्जत मिले। अब जो तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए में से तुझे दिया, इसमें तेरी बरकत श्री से यीशु ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज़ी रोटी आज हमें दे, और जिसका हम अपने दुश्मनों को माफ करते हैं, तू हमारे कर्ज माफ कर, हमें आज़माइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा, बादशाहत कुर्सी हमेशा तेरे। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल इनाम हम सबों के साथ और तमाम अहले मुकस्सीन के साथ अब से लेके हमेशा तक। आमीन।